बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के पाक और बाबरकत नाम से शुरू। अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अलोहा, and welcome to class number 14 of Sindhi language learning online course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and we are live from Karachi, our satellite office, our camp office of Sindhi Language Authority, Government of Sindh. So this is 5:02 p.m. in Pakistan, 5:32 p.m. in India. This is 4:02 p.m. in United Arab Emirates, UAE, जो उसकी मुख्तलिफ रियासतें हैं, 7 रियासतें, इंक्लूडिंग दुबई एंड अलैन and Abu Dhabi, etc., and Sharjah. This is exactly 3:02 p.m. in Kingdom of Saudi Arabia, KSA. This is 12:03 in the noon, 12:03 p.m. in London and United Kingdom, and some of the other countries of Europe. This is 7:03 a.m. in the morning in Washington, D.C., New York, and vicinity, including Toronto, and of course Bermuda Triangle. And if we travel towards the rest of the parts of the Asia, most of the Asia is watching right now evening. Various parts of उन्होंने मुख्तलिफ पहर तो ऑब्जर्व कर रही है पर touching the last point of the East, Far East, the Pacific region, that is Tokyo and Japan, Tokyo, including Tokyo, the whole Japan. It is 9:03 now, 9:03 p.m. in Japan, and this is 11:03 p.m. in Australia and 1:03 a.m. in New Zealand. So friends joining us from Southeast Asia, from Central Asia, not the whole Central Asia, but जहाँ जहाँ से हमें join कर रहे हैं, और the Middle East and MENA. A very good evening to those. The friends joining us from London and the rest of the parts of the United Kingdom and some parts of Europe. A very late good morning or an early good evening, good afternoon, early good afternoon to all of those Europeans and the friends from UK and the friends from East Coast of America. A very early good morning to those, and the friends from Australia also a late good evening, and the friends from New Zealand who are going to bed, about to going to bed. A good night to those. त असां सभई हिते गॾु आहियूं हिन जेको सिलसिलो आहे, सिलसिला तकल्लुम जो है, ये बज़्म, ये महफ़िल, ये जो रोज़ाना सजती है, ये एक शिक्षा पाठ है, ये एक शिक्षा का, एक लर्निंग का एक अरीना है. एंड वेलकम टू दिस लर्निंग अरीना, एंड द नेम ऑफ दिस लर्निंग अरीना इज सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स ऑनलाइन, एंड दिस इज क्लास नंबर 14. हम पिछली 13 क्लासों से साथ हैं. मुझे कहते हैं यासिर काजी, मेरी जानब से पुरखुलूस सलाम कबूल हो. आप जहाँ भी रहें अपनों के दरमियान रहें. मुझे उम्मीद है कि इस लर्निंग के इस फेज़ में हमारे जो साथी, चाहे वो ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन तो आप सब ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो के जो क्लास में मौजूद होते हैं और वो कि जो बाद में इन क्लासों की रिकॉर्डिंग्स देखते हैं और उससे इस्तेफादा करते हैं, उन तमाम को इस लर्निंग के एक्सपीरियंस में यकीनन वो मज़ा आ रहा होगा कि जिसकी एक्सपेक्टेशन उनको थी. सो दिस इज बाय दिस स्लाइड्स रिमाइंड्स यू दैट यू आर बीइंग होस्टेड बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैदराबाद. सिंधी बोलिए जो बाख्तियार इदारों, ये भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एवेल्यूशन टेस्ट में या फिर असेसमेंट टेस्ट में कि हाउ डू वी ट्रांसलेट सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैदराबाद. In Urdu, we will say मुख्तदरा सिंधी ज़ुबान, and Sindhi we will say सिंधी बोलिए जो बाख्तियार इदारों हैदराबाद, and the head office is in Hyderabad, and this class is being conducted from Karachi, from its camp office. This is Sindhi language learning course online, and this is class number 14. This is Khamis. Khams means 5. Khams means 5, and this is the 5th day since the classical calendar starts from Saturday. Then Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday is Chahar Shamba, that is Arraba, यानी चौथा दिन, और फिर आज है खम्स यानी खमीस है, जिसको सिंधी में हम सिंधिटाइज करके कहते हैं. ये लफ्ज है खम्स. खम्स का मतलब है 5. इट मीन्स 5, मीन्स 5th day of the week, and this is called खमीस. The other day we learned about the days of the week in Sindhi. So this is Khamis, 18th of January, 18 January 2024, and we welcome you to this
लर्निंग अरीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से जी बात हारे नाली से शुरू करूँ था, जेको निहायत महिरबान है असां सभिनी मथां पंहिंजो ख़ासि रहम करम कंदड़ आहे। असांजी सोच, असांजी सम्झ, असांजी फ़िक्र जी हद खां वधीक, हमारी सोच से ज़्यादा हम सबके दिलों की जो राजदार जो दिलों के पहलू हैं, जो राज वाले पहलू हैं उनको छुपाता है, दिलों के भेद अच्छी तरह से जानता है, हम सबको ढांपता है क्योंकि वो ढांपने वाला है। हम सबके ऐबों को वो पोशीदा रखता है। अल्लाह तबारक तआला के नाम से शुरू। अवलल्लाहुलीम आला आलम जो धणी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे क़दीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम। सो साराह सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी। Who will tell me the translation of the last line? करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी। कोई मुझे बताएगा कि इस लास्ट लाइन की एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? शायद बेटा इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? करे पाण करीम जोड़ऊं जोड़ जहान जी। एनीबडी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए। मोहम्मद इमरान जकरिया, डेरा इस्माइल खान से जी सर। इमरान जकरिया साहब, इस लास्ट लाइन में क्या कहते हैं शाह लतीफ पिटाई? इसका तर्जमा सर ये है कि अल्लाह पाक जो है, मौला जो है वो बड़ा करीम जात है, और उसने इस दुनिया में जितनी भी क्रिएचर्स पैदा किए हैं वो जोड़े जोड़े की शक्ल में पैदा किए हैं, चाहे इंसान है, जानवर है, जो भी मतलब चरिंद है, परिंद है, वो जोड़ी जोड़ी की शक्ल में मिलेगी, शाबाश। ताकि जो है वो जी जी बिल्कुल सही। लेकिन पहली ताकि लाइन वो ताकि वो क्या हो सके? ताके का तो उसमें नहीं है, मैं सिर्फ ताकि लाइन की मैं आपसे एक्सप्लेनेशन जी पूछ जी रहा हूँ। ये ताके इसमें नहीं है, इसमें यही है जोड़ो जोड़ जान जी, यानी उसने जोड़े चीजें पैदा की हैं, क्यों पैदा की हैं ये इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। चलिए जनाब, कौन बताएगा करे पाण ठीक। करीम की मीनिंग क्या है? थैंक यू सर, इमरान जकरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। करे पाण करीम की मीनिंग कौन बताएगा मुझे? करे पाण करीम, करे पाण करीम। Who will tell me the meaning of करे पाण करीम? सर जलील अर्ज कर रहा हूँ। जी जल्दी साहब। अल्लाह पाक करीम की जात जो है वो करम फरमाए, या इसको नहीं हमारे सर, लिए तकमील करम फरमाए। का इसमें जिक्र नहीं है सर। करे पाण करीम तीन अल्फाज हैं, अल्फाज से पूछिए कि अल्फाज से खुद पूछिए भाई तुम्हारे मायने क्या है। करे से पूछिए करे भाई आपकी मीनिंग क्या है। पाण से पूछिए पाण आपकी मीनिंग क्या है। करीम, करीम का मतलब है वो करीम, तो वो करीम के साथ करे और पाण से पूछेंगे तो वो मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस हाफ लाइन। जलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक दिया। एनीबडी एल्स हु कैन टेल मी कि करे पाण करीम की मीनिंग क्या है? Who will tell me? Who will share with me? करे का मतलब है करता है, वो करना जानता है, कर रहा है, करने में मशगूल है। करे, करे वही है, करे की मीनिंग वही है जो उर्दू में है। करे यानी वो खुद ही करे। करे पाण, पाण का मतलब है खुद। करे पाण खुद, वो खुद करता है, यानी उसकी, इसका मतलब यह है कि करीम खुद करता है। क्या करता है? तख्लीक हर चीज की जोड़ों से। जोड़ऊं जोड़ जहान, जोड़ऊं मीन्स जोड़े से, जोड़ मीन्स तख्लीक, जहान जी यानी जहान की। खुद तो करता है, लेकिन इसका मतलब यह खुद को खुद करता है का मतलब यह कि उसकी हिकमत वो खुद ही जानता है कि क्यों जोड़े में पैदा करता है, उसकी हिकमत वो खुद ही जानता है। यानी कहने का मकसद यह है कि ये हिकमत हम समझने से कासिर हैं। वो पाण तो जाने पे हो तो नहीं ना ससनी पाण जान हुआ। पाण जान मतलब यू नो द मोडालिटीज, यू नो द रीजंस ऑफ what you are doing. We are unable to understand, we are not wise enough to understand that why have you created everything in shape of couple, क्यों पैदा की हैं? तो ये करे पाण करीम, वो खुद ही जानता है अपनी हिकमत, उसका रीजन खुद ही जानता है। तो ये अगर रोजाना हम इसको पढ़ेंगे और एक एक लाइन का मफहूम जब समझेंगे, तो जब आप उसको अदा करेंगे तो आपकी अदायगी में वो तासीर आएगी कि जो इसका मफहूम है। मोहम्मद रफ़ी साहब को जब सिंधी में गाने गाने के लिए दिए गए, मोहम्मद रफ़ी साहब ने 10 आइटम्स गाए, पूरी एल्बम गाई है सिंधी में। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका 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 मफहूम लिख के दो कि ये बोल क्या कहते हैं।
ताकि मैं समझ के गा सकूं, ताकि उन अल्फाज में वो एक्सप्रेशन आ सके। तो जब तक आप करे पाड़ करीम जोड़ो जोड़ो जान जी, या कादिर पहन कुदरत सी कायम आए कदीम, या वाली वाहिद वहदहू राज़िक रहीम के मीनिंग के मायने नहीं समझेंगे, तब तक आपको उसकी तासीर नहीं आएगी, वो चीज़ अंदर नहीं उतरेगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत प्रवास मगर रखती है। तो जनाब कौन बताएगा कल के सेशन में, कल के क्लास नंबर 13 में हमने क्या सीखा था? एनीबडी हु कैन गाइड मी? क्योंकि आपको पता है मैं भूल जाता हूँ कल की चीजें। मुनीर न्याजी साहब देर किया करते थे, हम भूल जाते हैं। कल क्या सीखा था? नाम बताइए पहले। आयशा खान। आयशा खान साहिबा, क्या सीखा था कल? सर हमने कल अज्जो लफ्ज और अज्जो जुमले के बाद पानी जे जखेरे जे नाला सीखे थे, सब पानी के जखायर आबी के नाम जखायर सीखे के थे। नाम। और इन इसके दरमियान क्या था? वर्ड ऑफ द डे, सेंटेंस ऑफ द डे और आबी जखायर के नामों के दरमियान में क्या था? हमने की डिस्कस की थी। की डिस्कस की थी और उसके बाद रिजल्ट्स बताए थे, स्कोर्स बताए थे। जी। राइट, बहुत शुक्रिया आयशा खान साहिबा। कौन बताएगा कल का जुमला कौन सा था? व्हाट वाज द सेंटेंस ऑफ द डे? यस्टरडे सेंटेंस ऑफ द डे। रबिया साहिबा। यस सर, कोहिरो। कोहिड़ो था? नहीं, मैं सेंटेंस ऑफ द डे पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, आज डाडो कोहिरो आहे। हाँ, ये आज नहीं, अज। अज बोलिए, अज। 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 हाँ, ज को ज बोल के दिखाए मुझे। ज को ज, अज। 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 you have to practice this, okay, how to differentiate between j and j. j, j, इसमें फर्क कैसे करना है? This is your task to do it. आप अपने तौर पर इसको जितनी बार प्रैक्टिस कर सकें तो कीजिए, और जब ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाए और ये डिफरेंस आप प्रोनाउंस भी कर सके, तो that will be a शाबाशी day for you. Thank you, Rabia. And who else Thank is you, with sir. us? Welcome. Who else is with us? Aj Dadho Kohiro hai. What was the word of the day? Who will tell me? There was another lady, I could listen to her voice. Who is there? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। शादी सिराज सर। जी शादी सिराज साहिबा, क्या था कल वर्ड ऑफ द डे? सर कोहेड़ो। कोहिड़ो क्या है? फॉग या धुंध को कहते हैं सर। फॉग को वर्ड ऑफ द कहते डे था हैं हमारा। या धुंध को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सो मच। कोई ऐसा दोस्त जो मुझे ये बता सके, कोई ऐसा हमारा स्टीम्ड लर्नर, और ख़ासतौर पर वो कि जिनकी सिंधी मादरी ज़ुबान नहीं है, कल जो आबी ज़खायर हमने पढ़े थे, तो उनमें से किसी भी एक का नाम बता दीजिए कि समंदर को क्या कहते हैं, या कुएं को क्या कहते हैं, या दरिया को क्या कहते हैं, या नहर को क्या कहते हैं। कोई एनीबडी? सर नाम बताइए, नाम बताइए, जिन्होंने अनम्यूट किया हुआ है नाम बताइए। सर नाम बताइए, आई कैन लिसन टू यू। नाम बताइए। वकास साहब आप आ जाइए, आप यू हैव रेज योर हैंड। वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वकास साहब। कल असां जेको पढ़े कल तव्हां हुयो क्लास में? समुंड चवंदा आहिनि सर समुंड चवंदा आहिनि। समुंड छा खे चवंदा आहिनि? समुंड छा खे चवंदा आहिनि वकास? समुंदर के सर समुंदर जेको हूंदो आहे। अच्छा, ऐं समुंड जेकॾहिं वॾो हुजे, ओशन हुजे, त हुनखे छा चवंदा आहिनि? खंड 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 इज कॉन्टिनेंट, खंड इज समथिंग एल्स। तव्हां कल न हुयो न क्लास में? सर मां प्रेजेंट हुयुमि क्लास में, पर लेकिन जेको आहे थोरो कम हुए ने करे थोरो माना गौर ठीक सां है, कोन ॿुधी सघियुमि, माज़रत सर। ठीक है वकास साहब, काई ॻाल्हि कान्हे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कौन बताएगा मुझे कोई एक वाटर सोर्स जो है उसका नाम बताइए। क्विक 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 प्रॉम्प्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। महासागर। महासागर, महासागर किसको कहते हैं? ये सर ओशियन को बोलते हैं, बड़ा ओशन, समंदर, बहर। बड़े समंदर को बहर को बोलते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान ज़करिया साहब। एनीबडी एल्स? और कोई बताएं इसके अलावा, महासागर के अलावा एक और बताएं। 3 मुझे पूछ रहे हैं। सर दूसरा डैम, सर जलील अर्ज कर रहा हूँ, डैम जी। डैम था सर, डैम। डैम तो हमने पढ़ा ही नहीं था, डैम तो था ही नहीं था। और झील, वो झील पढ़ी थी सर हमने। झील को क्या कहते हैं सर? वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या झील कहते है। हैं। झील को सिंधी में क्या कहते हैं सर? सिंधी में चाहिए ना मुझे, मुझे उर्दू में नहीं चाहिए, सिंधी में चाहिए। वो
ढंड 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 याद आ गया से ढंड ढंढ ढंड ढंढ बोल के दिखाइए, ढंढ ढंड ढंढ ढंढ बोलिए। ढंड ढंढ जी, आखिरी लफ्ज पर, ढंड जी आखिरी लफ्ज पर हरकत आएगी। सिंधी का यही तो हुस्न है, आखिरी लफ्ज पर हरकत आएगी। ढंढ नहीं होगा, ढंढ होगा। ठीक है, आपको अगर कोई सिंधी बोलने वाला बुलाएगा तो ऐसे नहीं कहेगा जलील, वो कहेगा जलील है। वो ऐसे कहेगा, कैसे कहेगा? जलील। ये हुस्न है सिंधी का कि आखिरी लफ्ज पर हरकत आती है। और यही मैं समझा रहा हूँ क्लास, पहली क्लास से। बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब, थैंक यू वेरी मच। कौन बताएगा मुझे ढंड को अगर प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी द वर्ड अगर ढंड को हम प्लूरल करेंगे तो क्या होगा? क्या मैं करीब से होगा? बात कर रहा हूँ सर। जी करीम साहब। ढंडू होगा, ढंडू, जी दरियाऊ, वाहू, हाँ ओके। शाख, हाँ, दरियाओ को दरियाओ बोले, ढंड, दरियाऊ ना कहें, दरियाओ। दरियाऊ, वाह, दरियाऊ, शाख, शाख, ठीक है। दरियाऊ, सारे शाख, बता दिए सराऊ, आपने, दूसरों के लिए भी छोड़ दें, थोड़े दूसरे भी बता दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ढंड शुक्रिया, फिर बहुत बहुत शुक्रिया करीम साहब। एनीबडी एल्स, एक मुझे और बता दें इन वाटर सोर्सेज में से, एक और कोई भी, कौन सा था? कोई बता दें, एनीबडी एनीबडी एनीबडी, क्विक 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 बी क्विक, ताकि हम आगे बढ़ें। सर वाटर हूंदो आहे, वाटर खां पोइ शाख हूंदी मिठड़ा आहे। ओ मिठड़ा ओ दिलबर ओ जानी ॻाल्हि ॿुधो, जेको कल्ह सेखारियो आहे उहो ॿुधायो, जेको कल्ह असां पढ़ायो आहे उन्हनि मां ॿुधायो, तव्हां ईअं न रैंडमली न ॿुधायो। वॉट वी लर्न यस्टरडे, असां कल्ह जो रिवीजन था कयूं न, असां ईअं कोन था चऊं तव्हांजे ज़हन में जेको बि अचो ॿुधायो। कल्ह जेके असां पढ़ियासीं उन्हनि मंझां ॿुधायो। तव्हां चयो तव्हां क्लास में कल्ह कोन हो एंड यू हैव नॉट गॉन थ्रू दिस स्लाइड्स, त जेके हुया त उन्हनि खे ॿुधाइण ॾियो त कल्ह असां कहिड़ा कहिड़ा पढ़ियासीं। ईअं त हाणे सभई आहिनि वाटर सोर्सिस, नालो बि आहे, नाली बि आहे, घणो कुझु आहे। बट वी लर्न अ फ्यू specific water resources, उनमें से कौन बताएगा? Who is there to tell me? रबिया है सर। जी रबिया। सर वाहू। वाह, वाह किसको बोलते हैं? सर केनाल को। कैनाल को बोलते हैं। शाबाश रबिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और सर, जब मैं जी एक सर और ऐड करूंगा, वो वाटर चैनल आपने बताया था जो उससे आगे निकलती है, चैनल। गुड गुड जलील साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं जब स्लाइड्स देख, हालांकि मैंने उसमें से स्पेसिफिक ही चुने थे और मैंने कहा कि बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। इवन पानी जो दुबो भी थी सके तो, यानी जो बारिश के पानी खड़ा हो जाता है गलियों में, उसको भी, वो भी एक मतलब एक जगह पर पानी वाटर बॉडी है। एक होता है नए जो बरसाती नाला होता है, वो भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सीधा सीधा आपकी खिदमत पेश की है। बरसाती नाले आपने देखे होंगे अगर आप ट्रैवल, इफ यू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, तो दरमियान में बहुत सारे पुल ऐसे आते हैं जिनके नीचे से कुछ नहीं गुजर रहा होता। आप सोच रहे होंगे कि ये पुल क्यों बना है, नीचे से गुजरगाह है, आप भी गुजरगाह, लेकिन वहां से कोई पानी नहीं गुजर रहा होता, कोई दरिया नहीं गुजर रहा होता। वो साल में सिर्फ मानसून के 2 महीनों के दौरान इस्तेमाल होने के लिए बनाए जाते हैं। उनको नए कहा जाता है सिंधी में, जिनको उर्दू में बरसाती नाला कहा जाता है। बरसाती नाला, ठीक है, वो सिर्फ बारिश में जब पहाड़ों पर पानी गिरता है तो वो बह के उस पुल के नीचे से गुजर जाता है। अगर वो पुल बना हुआ ना हो और उस पर कोई भी रोड या रास्ता बना हुआ हो तो वो उसको तबाह करके गुजरेगा, लिहाजा वो पुल बना हुआ होता है। ऐसे 22 पुल हैं, 22 नए हैं, नए, उनको सिंधी में नए बोलते हैं। वो कराची और हैदराबाद के दरमियान सिर्फ 22 है, ठीक है, और उसको नए बोलते हैं, वो भी एक वाटर बॉडी है। लेकिन मैंने सीधा सीधा का जिक्र किया, तो मैं जब गुजर रहा था, आई वाज गोइंग थ्रू दी स्लाइड्स, तो उसमें मैंने कहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें एक और होनी चाहिए थी, वो मैंने आज की जो, यानी कल की प्रेजेंटेशन जो आज शेयर हुई आपके साथ, उसमें शामिल कर दी है। वो कौन सी थी? वो कल मैंने उसमें शामिल नहीं की थी, लेकिन कल वाली में शामिल करके आप अगर इसको गो थ्रू करेंगे, अगर आप देखने की जहमत करते हैं तो उन्होंने बताया कि वह नजर ईंदी आखिरी वाटर बॉडी के तौर पे, ठीक है। वो कौन सा था उसका जिक्र करते हुए फिर आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। वो था, कौन सा वाटर सोर्स था? वो था आबशार। आबशार, वाटरफॉल, ऊपर से जो पानी गिरता है, आबशार। वैसे चश्मा भी बजाते खुद एक वाटर बॉडी है, लेकिन हम आबशार का जिक्र करें। आबशार यानी वाटरफॉल, किसी ऊंचाई से जहां से ग्लेशियर पिघल के और नीचे गिर रहा हो पानी के सूरत में, उसको सिंधी में बोलते हैं झिरणो। झिरणो, झिरणो, ये झे है, ये जीम और है नहीं है, ये झे है।
झ, इसका प्रोनाउंसिएशन झ आपने पढ़ा है, झे झिर की, अल्फाबेट्स में पढ़ा है, झे झिर की, झे पर जेर है, रे पर भी जेर है, झे रे, ये है नून, नून के बाद आता है जो हमजा वाव और ये से पहले, नून नत्थर, नून वर्ण, वाडो, हयाती, अलिफ हमजा और ये यक्को, या फिर मुख्तलिफ किताबों में उसकी मुख्तलिफ वो तशबीह। तो ये है नून यानी, ठीक है, वर्ण जिससे हमने सीखा था, वर्ण, नून वर्ण, नो वर्ड स्टार्ट्स विद नून बट इट इज यूज्ड इन वर्ण, ण फिर वाव, ठीक है, ण और वाव जबर के साथ मिले हुए हैं, णो, झ र णो, झे पर जेर, रे पर जेर, नून यानी और वाव जबर के सुर के साथ आपस में मिले हुए, झ रे णो, झ रे णो, झिरणो, झिरणो, राइट। और अगर ये झे की जगह पर काफ लगा देंगे, किताब वाली काफ, तो बन जाएगा किरणों, किरणों कहते हैं किरण को, सूरज की किरण को या रोशनी की किरण को, किसी भी रोशनी के सोर्स से किरण जो आती है, किरण इज मोनस, इज फेमिनाइन, बट इन सिंधी इट इज किरणों, दैट इज मैस्कुलाइन। बहुत सारी किरणें जैसे कहते हैं हम, किरणें, तो उसको सिंधी में बोलते हैं किरणा। सिंधी में किरण भी मोनस है और किरणें भी मोनस है। ओवरऑल सिंधी में किरणों इज मेल and kirina is also male but it is used as kirina यानी किरने, ठीक है। वो क्यों बता रहा हूँ कि झिरणों का झे चेंज कर देंगे तो वो किरणा बन जाएगा, आगे चल के हो सकता है कि हम उसको पढ़े भी। तो झिरणों मीन्स आबशार, इट मीन्स वाटरफॉल। ये कल की वाटर बॉडीज में एक एडिशन था जो कि कल की प्रेजेंटेशन में शामिल कर दिया गया, राइट। आज के लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड ऑफ द डे, अज जो लफ्ज, आज का लफ्ज अज जो लफ्ज। कल हमने कोहिड़े के बारे में, कोहरे के बारे में पढ़ा था। देखें, कोहिड़े कोहरा भी बोलते हैं, ठीक है। एक क्लासिक उर्दू है, एक मॉडर्न उर्दू है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले या इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से हिजरत करके आने वाले जमाई को उबासी बोलते हैं, सुना होगा आपने। सिंधी में भी उसको उबासी ही बोलते हैं। यानिंग, जो नींद खुलने के बाद भी आती है और जब नींद बहुत ज्यादा आ रही होती है तो भी जमाई आ रही होती है, तो वो यानिंग इज कॉल्ड इन क्लासिकल उर्दू उबासी। बहुत सारी बड़ी बूढ़ियां जो हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो उबासी कहते हैं उसको, तो ये सिंधी में उबासी कहा जाता है। दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम सिंधी डायरेक्टली, राइट। तो कोहरे का हमने जिक्र किया, तो वही कोहिड़ो वही है जो कोहरा जिसके लिए इस्तेमाल होता है। तो वो जब छट जाता है, जब सूरज निकलता है, जब हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, निस्बतन सर्दियों में जितना हो सकता है आफ्टरनून में, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है तो वो कोहिड़ो खत्म थी घटबो वेंदो, धुंध छटती जाती है और वो जो फोग है वो मिटती जाती है। तो क्या होता है, क्लियरिटी होती है हर चीज में, हर चीज वाज़ेह होती है, हर चीज क्लियर होती है। उस वाज़ेह को सिंधी में क्या कहते हैं, उस वाज़ेह को सिंधी में कहते हैं चिट्टो, क्लियर, चिट्टो, चे पर जेर, टे और वाव एक ही सुर में, जबर के सुर में आपस में मिले हुए, चिट्टो। चिट्टो मीन्स वाज़ेह, वाज़ेह निकला है वजाहत से, यानी जिसकी वजाहत की जरूरत ना हो, जो वजाहत शुदा हो, जो वजाहत हुआ हो, उसको कहते हैं वाज़ेह। जो बिल्कुल साफ दिखाई दे उसको कहते हैं चिट्टो, वाज़ेह, क्लियर, राइट, क्लियर। और लिखा गया, इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाएगा, बॉटम में लिखा हुआ है चिट्टो, CHITTO, चिट्टो, चे पर जेर, टे और वाव आपस में मिले हुए जबर के सुर के साथ, राइट, अंडरस्टैंड। और ये इसमें तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि पानी क्लियर है, जिसके बबल्स तक नजर आ रहे हैं। कोई भी चीज क्लियर हो, मौसम क्लियर हो, आसमान क्लियर हो, शीशा क्लियर हो, बात क्लियर हो, रिश्ते क्लियर हो, तो कहा जाएगा चिट्टो, वाज़ेह, जिसकी वजाहत की जरूरत ना हो। तो दिस इज चिट्टो। अज जो लफ्ज, वर्ड ऑफ द डे, अज जो लफ्ज इज चिट्टो, मीन्स वाज़ेह, मीन्स क्लियर। How will we pronounce it? That is written in the bottom of the slide. Hope that is clear. Now we are moving forward towards आज जो जुमलो, आज का जुमला। What is the sentence of the day? आज जो जुमलो, आज का जुमला क्या कहता है?
रैंडमली गुफ्तगू चल रही है। अब उस रैंडम गुफ्तगू में जो अल्फाज, जो जुमले, जो बातें मुमकिना तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, हम वो सीखने की कोशिश करें ताकि बेसिक कॉन्वर्जेशन में हम पता चले कि कौन सी चीज किस तरह से कही जाती है, कौन सी बात किस अंदाज में कही जाएगी, किस एक्सप्रेशन के साथ कही जाएगी। तो छोटे छोटे जुमले जो आप नोट कर रहे हैं, बेहतर होगा कि अगर चंद पेजेस मुख्तसर कर दें आप अपने उस नोटबुक में वर्ड ऑफ द डे के लिए, वर्ड्स ऑफ द डे के लिए, चंद पेजेस आप मुख्तस कर दें सेंटेंस ऑफ द डे के लिए, और इसी तरह से चंद पेजेस मुख्तस कर दें जो हर शोबे के अलग अलग अल्फाज हम लिख रहे हैं, ताकि एक जगह पर जब आपको सेंटेंसेस ऑफ द डे मिलेंगे तो आपको आसानी होगी कि अगर कॉन्वर्स करना है, कैसा ॻाल्हाइणो आहे, ॻाल्हि ॿोल करणी आहे, कचहरी करणी आहे, त कहिड़ा कहिड़ा जुमला इस्तेमाल थी सघनि था, which are the sentences which can commonly be used while communicating with someone in Sindhi, the language which you are learning, the language of your land, the language of Indus Valley civilization। और उन्हीं में से एक जुमला है, कभी कभी कहते हैं ना कि यार वो दवाई लेकर आओ, तो कहते हैं कहाँ से लेकर आओ, पूरा शहर तो बंद पड़ा हुआ, पूरा शहर तो बंद पड़ा हुआ है। लेकिन इसको अगर सिंपल करेंगे, पहले इसको सिंपल सीखते हैं कि पूरा शहर बंद है, सजो शहर बंद आहे, the whole city is closed। simplest form of the sentence to express, पूरा शहर बंद है, पूरा सजो, पूरा is सजो, this is जीम और में फर्क है। सजो सीन पर जबर है, ये और वाव जबर के सुर के साथ आपस में मिलेंगे। सजो मीन्स पूरा, तमाम, एंटायर, होल, ऑल। सजो शहर शहर ही होगा, लेकिन हे उर्दू में ऐसे लिखी जाती है, सिंधी में ऐसे लिखते हैं शहर। सजो शहर बंद, बंद ही कहेंगे सिंधी में, है को सिंधी में आहे बोलेंगे। सजो शहर बंद आहे, पूरा शहर बंद है। The whole city is closed, the whole city is closed and no shop is open, how can I go and shop anything? उस सूरत हाल में आप कहेंगे सजो शहर बंद है, the whole city, the whole बाजार, the whole market is closed, सजो शहर बंद आहे, पूरा शहर बंद है। एज उसका तर्जुमा है, क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ब है वो दरमियान में आता है, उर्दू और सिंधी दोनों में वर्ब जो है आखिर में आता है, बिल्कुल आखिर, सजो शहर बंद आहे। अब इसी जुमले को आप किसी और अंदाज में अगर बोलना चाहें, कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं कि पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है, यार पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है, पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है। तो उस सूरत में आप बोलेंगे सजो शहर बंद लगो पयो आहे, means it is in the state of being closed, it is already closed and in state of being closed। अगर इस तरह से बोलेंगे the whole city is closed down, पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है, तो उसको आप बोलेंगे सजो शहर बंद लगो पयो आहे। पूरा सजो शहर, शहर बंद इस बंद, पड़ा हुआ है, लगो पयो आहे, सजो शहर बंद लगो पयो आहे, सजो शहर बंद लगो पयो आहे। शहर की जगह पर बाजार भी कह सकते हैं। शहर जब कहेंगे तो इट इंक्लूड्स ऑल कमर्शियल एरियाज एज वेल एज रेजिडेंशियल एरियाज। पूरा शहर बंद पड़ा, मतलब गलियों में जो दुकानें होती हैं वो भी बंद है। एक तो शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग प्लाजा, शॉपिंग मॉल से जो कमर्शियल एरिया होता है, जैसे तारिक रोड है, जैसे लालू खेत है, तो ये तो एक कमर्शियल एरिया हो गया। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया वो बंद है, सब सारा शहर, उससे मतलब ये होता है। लेकिन सारा मार्केट बंद है, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट बंद है सिर्फ, यानी कमर्शियल एरिया बंद। तो सजो शहर बंद लगो पयो आहे, पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है। इस सजो शहर बंद लगो पयो आहे इज द ट्रांसलेशन ऑफ पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है, एंड सजो शहर बंद आहे इज द ट्रांसलेशन ऑफ पूरा शहर बंद है। आई होप दैट्स क्लियर। एनी क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, और बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पट्टी, द नेक्स्ट जदवल which we have to read, which we have to study, which we have to learn, वो कौन सी थोड़ी देर में पूछूंगा। लेकिन कल हमने इस कोर्स का जिक्र किया था, इस कोर्स आपके सामने थे। ये कल की, ये परसों वाली टेस्ट के कोर्स थे जो ट्यूसडे को कंडक्ट की थी हमने, 16 जनवरी को। कल हमने उसके रिजल्ट्स आपकी खिदमत पेश किए। जो साहिबान, ख़वातीन और हज़रात जो देवियाँ और सज्जन जो है वो कल शरीक नहीं हो सके थे, वो इस टेबल को एक बार देख लें कि ये उसकी स्कोरिंग थी।
और ये इसकी मेरिट लिस्ट थी एज पर मार्क्स, राइट। ये और अब टोटल स्कोर्स अपडेटेड जो हैं, यानी उससे पहले जो 2 असाइनमेंट्स आपको दी गई थी, और तीसरा जो असेसमेंट टेस्ट था ये 16 जनवरी को हुआ था, और उसी असेसमेंट टेस्ट वाले दिन हमने मशक की थी जेर वाली टेबल की, और उसका जो क्लास वर्क है, उसकी जो एक्सरसाइज है, उसके इमेजेस आपने सबमिट करवाने थे, जिसके 2 नंबर्स थे। अब उसमें भी मुस्तैदी के साथ जो है उन्होंने ॾिसना है, तो हिकिड़नि डिटेलिंग सां कमु कयो, हिकिड़नि सरसरी कमु कयो हूंदो आहे, पर बहरहाल उन्हनि जो 2 मार्क्स आहिनि। पर इहो ज़हन में रखियो, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो डिटेलिंग के साथ काम करते हैं उनको स्टार मिलता है, हम स्टार लगाते हैं, क्योंकि आपके असाइनमेंट फाइल में जो है आपका जो पोर्टफोलियो बन रहा है उसमें वो चीज़ें इंक्लूड होंगी। अगर आप उन पेपर्स को अलग अलग से कर रहे हैं तो उनको अलग फाइल में लगाते जाइए, वो आपका पोर्टफोलियो बनेगा, राइट। तो अब अपडेटेड स्कोर्स उसके साथ, यानी ये जो चारों स्कोर्स हैं मिलाकर जो टेबल है पूरे क्लास के लर्नर्स की, वो क्या है, वो उस पर एक नज़र डाल देते हैं कि वो उसकी सूरत हाल क्या है। शुरू करते हैं फ्रॉम फायजा मुस्तफ़ा साहिबा। फायजा साहिबा की पहले वाली 2 असाइनमेंट में 2-2 नंबर्स थे। कल के टेस्ट में, यानी परसों वाले टेस्ट में जो कल जिसका रिजल्ट आया उसमें 5.5 मार्क्स थे, और उन्होंने असाइनमेंट जमा करवाया, यानी परसों वाला। तो उनके अब तक के टोटल स्कोर्स हैं 11.5, 11.5। करीम साहब ने 4 नंबर्स पहले सिक्योर किए थे, और परसों वाली टेस्ट में 8.5 नंबर्स लिए। परसों वाली असाइनमेंट उन्होंने जमा करवाई तो उसके 2 नंबर्स हुए, टोटल 14.5 नंबर्स उनके हुए। यहाँ पर पता नहीं क्यों आयशा खान का स्कोर नोट नहीं किए गए, लेकिन आयशा खान का टोटल स्कोर होगा 13, ठीक है, क्योंकि पहले वाली 2 असाइनमेंट्स उनकी जानिब से जमा की गई हैं। तो 4 नंबर्स उनके होते हैं, और 9 नंबर्स उनके टेस्ट में थे। न जाने क्यों उन्होंने असाइनमेंट नहीं जमा करवाया। लेकिन जी आयशा खान साहब, इज देयर एनी एरर इन योर स्कोर्स? सर मैंने असाइनमेंट जमा करवाई थी, और अच्छा सिर्फ 5 मिनट में ही जमा करवा दी थी मैंने। अच्छा, हो सकता है कि उनसे जी, नोट और करने कल में। आपने लिस्ट में भी मेरा नाम कहा था। अच्छा, लेट मी चेक। जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो मेरे पास ही है, तो वी आर चेकिंग इट राइट अवे। आयशा खान जी, आपकी तरफ से असाइनमेंट है, तो आपके 2 नंबर्स यहाँ भाई ये इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये आयशा खान नंबर 3 पर है, सीरियल नंबर 3 पर, प्लीज नोट इट डाउन, ताकि वो किसी का जो राइट है वो कहीं भी मिस ना हो। तो ये आगे आयशा खान साहब, मैं इनसे कह देता हूँ कि ये नोट कर लें। तो ये 2 थैंक यू + 2 सर। 2 वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। तो ये 6 और 9 15 नंबर्स आपके हो गए आयशा खान साहिबा के। अच्छा जी, आसिफ महमूद अवान साहब जो हैं वो उन्होंने टेस्ट नहीं दिया था, और जो टेस्ट दिया था उसके 1.5 मार्क्स थे, असाइनमेंट जमा नहीं करवाया था तो उसके कोई नंबर नहीं है। उनका टोटल स्कोर है 3.5। मोहम्मद इमरान जक्रिया साहब ने 6 नंबर सिक्योर किए परसों वाले टेस्ट में, और असाइनमेंट जमा करवाया था तो वो 2 नंबर उनके हुए। उनका टोटल स्कोर है 12, इमरान जक्रिया साहब का। रबिया साहब हैदराबाद से, उन्होंने 3 मार्क्स सिक्योर किए थे टेस्ट में, और असाइनमेंट जमा करवाया था उसके 2 नंबर्स। टोटल उनका स्कोर है 9। आइलीन साहिबा ने टेस्ट में 6 नंबर्स लिए थे, और असाइनमेंट जमा करवाने के 2 नंबर्स मिलाकर टोटल स्कोर उनका 10 बनता है। फजीला साहिबा ने टेस्ट में 5 नंबर्स लिए थे और असाइनमेंट जमा करवाया था, तो उनके टोटल स्कोर जो है, टोटल स्कोर अब तक, क्योंकि 4 नंबर उनके पहले हैं, तो वो 11 बनते हैं, राइट। आयशा तारिक साहिबा ने 2 नंबर्स लिए थे, 1 नंबर लिया था टेस्ट में, और 2 नंबर्स उनके असाइनमेंट के हैं, तो टोटल उनका स्कोर बनता है 5। मोहम्मद जलील साहब ने 4.5 नंबर्स लिए थे टेस्ट में, और 2 नंबर्स उनके असाइनमेंट के हैं, तो उनका टोटल स्कोर होता है 8.5, 8.5। दीज आर टोटल स्कोर्स अप टू डेट, ठीक है, जो भी आपकी असाइनमेंट्स हुई हैं। आसिफ इकबाल साहब ने 6 नंबर्स लिए हैं टेस्ट में, और 2 नंबर्स उनके असाइनमेंट के हैं, तो उनके टोटल नंबर्स होते हैं 10। थोड़ी देर में हम सेशन रिकनेक्ट करेंगे, तकरीबन 1 मिनट के बाद हम डिस्कनेक्ट होंगे, तो उसके बाद रिकनेक्ट करेंगे। दिस व्हाट इज दिस, ये जो दूसरे नंबर पर, अच्छा जी, ये जो दूसरी टेबल है, मोहम्मद शर्जील साहब के टेस्ट में 6 नंबर्स थे, और 2 नंबर्स उनके थे असाइनमेंट के, तो टोटल मोहम्मद शर्जील साहब ने 10 नंबर हासिल किए हैं। नदीम सोहू साहब ने टेस्ट में 2 नंबर, टेस्ट उन्होंने नहीं दिया था, लेट सबमिट करवाया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो उनके कोई नंबर्स नहीं है, और लेकिन असाइनमेंट के 2 नंबर से उनके टोटल स्कोर है 4। तो शायद पहले वाला असाइनमेंट जमा नहीं करवा सके थे। मकसूद अली साहब ने
8 नंबर्स लिए, शाबाश, आपने टेस्ट में 8 नंबर्स लिए और 2 नंबर्स आपके असाइनमेंट के हैं, तो टोटल स्कोर आपका 14 होता है। रिजवान खान साहब एब्सेंट थे इस टेस्ट में भी और असाइनमेंट जमा करवाने के हवाले से भी, तो उनका टोटल स्कोर 2 है। इरमनाज साहबा ने टेस्ट में 1 नंबर लिया था, असाइनमेंट जमा नहीं करवाई थी, तो टोटल स्कोर उनका 3 है। शादी असराज साहब ने 7 नंबर लिए थे टेस्ट में और असाइनमेंट जमा करवाने के 2 नंबर, टोटल उनका स्कोर है 11। वकास अली साहब टेस्ट नहीं दे सके थे किसी वजह से, लेकिन असाइनमेंट जमा करवाया था, टोटल उनका स्कोर 4 है। और इसी तरह से मोहम्मद हमजा साहब ने जो है, आई होप यू कैन सी माई स्लाइड्स नाउ, मोहम्मद हमजा साहब के स्कोर्स 8 थे, टेस्ट में स्कोर्स 8 थे और असाइनमेंट के 2 नंबर्स उनके टोटल 12 स्कोर बनाते हैं। आयशा बुलत साहबा के 7 नंबर्स थे टेस्ट में, उन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं करवाया किसी वजह से, तो उनके टोटल स्कोर्स हैं 9। और फिर ये आखिरी हमारे 3 मेहरबान जो हैं वो इस असाइनमेंट जमा करवाने के हवाले से भी और टेस्ट में अपीयर होने के हवाले से भी इनके कोई नंबर्स नहीं, क्योंकि वो एब्सेंट थे। मोहम्मद फैजान अहमद साहब, जीशान अहमद साहब, मिर्जा शहबाज साहब, तो इनकी टोटल स्कोर्स हैं 2, 2, 2। ठीक है, ये हैं टोटल स्कोर्स। तो ये था अब तक का जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्ट, और इसी में एडिशन होता जाएगा जैसे जैसे आगे असाइनमेंट्स आते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। सिंधी आयोटा की पट्टी कक का हम जिक्र कर रहे थे। ठीक है, कौन बताएगा कि अब सिंधी आयोटा की पट्टी में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी भी जदवल पढ़ेंगे? तो कुल 20 जदवलें हैं, तो कौन सी भी जदवल पढ़ेंगे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम बताइए। Imran Saab, promptly we need answers from whoever is available so that we may move to our सर 6 नंबर, आज जो है हम 6 नंबर पढ़ेंगे, मद जी जदूल। अच्छा, जदूल नहीं है, पहली बात तो ये जदवल है, और दूसरा ये कि उससे पहले भी एक स्पीड ब्रेकर था, आप उस पर नहीं अच्छा। ठहरे, आप उड़ के जो है वो 6ठी पर पहुंच गए। 5वीं कौन पढ़ेगा? 5वीं तो हम पढ़ेंगे। सर Who is there? ये है Who is there? सर जलील बात कर रहा जी जली साहब, हूँ, जलील अर्ज कर रहा हूँ सर। जी, सर जलील। पेश वाली सर, पेश 5वीं। वाले, ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? There was somebody from with a child, with a kid. I don't know whether the kid is my student or the one of the any of the parents from parents of the kids. Lekin I want to know ke what was the next jadwal which we have to learn? Which is the next forthcoming jadwal? Which is the next table? Anybody? Quick, be quick. Otherwise, I'll move forward. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आज हम पहले पेश तो की जरूर पढ़ेंगे पहले इस सर। बच्चे का नाम बताएं, इस बच्चे का नाम क्या है जिसकी आवाज हम फीहा सुनते हैं रोजाना? फारूक। सॉरी, फीहा। फीहा, ओके, फीहा, ओके। क्या पढ़ेंगे हम? जी सर। जी, क्या पढ़ेंगे हम आज? पेश जो जदवल सर। पेश जो जदवल पढ़ेंगे, थैंक यू। अच्छा जी, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? चलें जनाब। तो ये जो पेश जो चार्ट है, दिस इज चार्ट नंबर 5। इमरान साहब, 6ठी से पहले एक और स्पीड ब्रेकर है, उस पर उससे गुजर जाए तो फिर 6ठी पे आएंगे, क्योंकि जेर जबर पेश, जेर थी जबर न थी, पेश थी सही, याद है ना ख्वाजा गुलाम फरीद? तो जेर थी जबर न थी, पेश थी सही। तो अब जेर हम जबर नहीं बने, हम जेर बने और उसके बाद पेश तो हुए हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि सुरखरू होंगे अपने हर इम्तिहान में, चाहे वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हो या फिर उसके बंदों की तरफ से हो, राइट? तो हर चीज़ जब भी हम आप एक सफ़र से गुजरते हैं तो उसके बाद फिर जो नतीजो ॿुधंदो आहे, तो उन नतीजे जे लाइ उनखे एनालाइज़ करण जे लाइ कंहिं न कंहिं इम्तिहान में गुज़रणो पवंदो आहे। ज़िंदगी इट सेल्फ इज़ एन इम्तिहान। सो आवर नेक्स्ट पड़ाव इज़ असांजो ईंदड़ थाक आहे। पड़ाव को सिंधी में कहते हैं थाक, 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 पड़ाव। ये भी हम वर्ड ऑफ द डे में पढ़ेंगे कभी, लेकिन अचानक से एक बस बिल जिक्र आ गया तो मैं आई शेयर विद यू। तो दिस इज पेश जो चार्ट, आपको पता है पेश कैसे लिखा जाता है? जो टेप पर आप ये देख रहे हैं, ये पेश है, पेश जो चार्ट, ठीक है, पेश की जदवल। और बाकी जदवलें आपके सामने है। सिंधी अलफ-बे जो चार्ट, सिंपल जो अल्फाबेट्स टेबल है, उसके बाद अदाखरी जदवल हमने पढ़ा,
जबर जो चार्ट पढ़ा, जेर जी जदवल पढ़ा, और अब पेश जो चार्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये बार बार क्यों कहता हूं, ताकि रिमाइंड होता रहे आपके जहन में, यहाँ पर ये चीज बैठी रहे कि उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पढ़ाओ कौन कौन से। मद्दजी जदवल, ओ जो चार्ट, ऊ जो चार्ट, ए जो चार्ट, अए जो चार्ट, ए जो चार्ट, अए जो चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट ई जो चार्ट, अन जो चार्ट, इन जो चार्ट, उन जो चार्ट, आ जो चार्ट, ओ जो चार्ट, ऊ जो चार्ट, ए जो चार्ट, आए जी जदवल, आए ई जी जदवल, ए आए आए ई जी जदवल, राइट। वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू लर्न these forthcoming jadwals in our next classes, but fil waqt we have to study, we have to learn पेशजो चार्ट, पेशजो चार्ट। तो हम आते हैं पेश के चार्ट की तरफ, और ये है पूरा अल्फाबेट। There are 52 letters in Sindhi alphabet. This is पेशजो चार्ट। आप देख रहे हैं कि तमाम हरूफ पर जो है वो पेश है। अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, बे पेश बो, दिस ब ब। बुधण सुन्ना, बुधण शारदी पिटाई कहते हैं। वहदहु ला शरीक लहू, बुधुई न बोड़ा, बोड़ा कहते हैं बहरे को। वहदहु ला शरीक लहू, यानी वो कुरान का इरशाद, उसके बाद बुधुई न बोड़ा, ए बहरे क्या तुमने नहीं सुना। तो दैट स्टार्ट्स विथ बे, बुधुई न बोड़ा, के तो कने न स्वाज घट अंदर घोड़ा, गाड़ी दे गोढ़ा जित शाहिद थींदई सामुहा। वही बात पेश थी सही। तो दिस इज बे, बे पेश बो। उसके पास है भे, जो हमने पढ़ा था, भे बोलड़ो, भे पेश भो, ते पेश तु, थे पेश थु, थे पेश थु, टे पेश टु, टे पेश टु। हु विल टेल मी कि हमने सिंधी अल्फाबेट्स में टे की जगह पर कौन सी फिगर सीखी थी। जैसे अलिफ अख पे बदक, तो टे की जगह पर कौन सी फिगर हमने सीखी थी। विल टेल मी, who will tell me? Be quick, be prompt, be concise, be precise. Who will tell me? टे पर हमने क्या पढ़ा था? Quick, 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 quick. Anybody? Anybody? टे से क्या था? अलिफ से अक था, ढे से ढगो सर, था। सर जी, टोपी, टे से टोपी था। Who is there? सर टोपी, Who is there? टोपी? आयशा खान। आयशा खान साहिबा, शाबाश, बहुत शुक्रिया। आयशा खान ने बताया कि टोपी, that means कैप। इसके मायने पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोपी कैप को उर्दू में भी टोपी कहते हैं, सिंधी में टोपी कहते हैं। ठे पेश ठो, से पेश सु, पे पेश पो, जीम पेश जो। जीम से क्या पढ़ा था हमने? Who will tell me? Anybody else other than from Aisha Khan? Quick, 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 quick. असम Who is सर। there? सर, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम बताइए और बताइए कि क्या क्या पढ़ा था जीम सर से। शादिया सिराज। शादिया सिराज साहब क्या पढ़ा था जीम से? सर जहाज। जहाज पढ़ा था, श्योर? जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शादी सिराज साहब। मैंने जलील साहब की आवाज भी सुनी। जलील साहब, आप ये बता दे कि जीम से पहले जो हर्फ था पे, पे से हमने क्या पढ़ा था? जलील साहब, पे से क्या पढ़ा था? पे से सर पर नहीं सर, सॉरी सर। आपको याद है हमने पे से पग पढ़ा था, पग, पगड़ी, पग। हाँ, पग पढ़ा था हमने, पग, राइट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बी अटेंटिव। और ये जो है ना वो क्विक क्विक जो आपसे कहता हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि जल्दी से आए, फौरन अपनी बात करें, और उसके बाद फिर अगले को मौका दें, ताकि ये रीडिंग प्रोसेस भी चलता रहे, ड्रैग ना हो, गिहिलजे ना। हमने पढ़ा था ना, ड्रैग करना, गिहिलजा। क्विक क्विक हम टच करते चले तमाम चीजों को। पे पेश पो, पे वॉज पगड़ी, पे वॉज पग, राइट। जीम वॉज जहाज, जीम पेश जो, ये पेश जू, ये पेश जू, झे पेश झू, न्ये पेश न्यू, दिस इज न्यू, न्ये पेश न्यू, चे पेश चु, चे पेश चु, छे पेश छु, छे पेश छु, हे पेश हो, हे पेश हो, खे पेश खो। खे से क्या पढ़ा था? What was the figure denoting खे? Which figure was denoting खे? Who is there? सर खच्चर। खच्चर। Who is there? इमरान जकरिया साहब। जी सर। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू। हे पेश हो, खे पेश खो। उसके बाद दाल पेश दो। दाल से क्या था? मैं तो भूल गया। दाल से क्या था? What was with दाल?
Which figure was denoting dal? Anybody else? दर Sorry, नालो तांजो नालो दर सही तांजो नालो रिजवान सही रिजवान साहब दर न हो रिजवान न मुझे साईं तांदिस जो दर न हो. Thank you very much. Very मेहरबानी रिजवान साहब. Anybody else? What was with दाल? दाल से क्या था? क्या पढ़ा था? भूल गए? फजीला साहिबा. I guess दोहल. Dol, who is there? Sir, Who is, दोहल. Dol, who is there? पहले अपना नाम बताएं उसके बाद बताएं. पहले अपना नाम बताएं उसके बाद बताएं. सर फजीला. फजीला बताया दोल. नाम बताया दोल. जी सर. अच्छा शाबाश, बिल्कुल सही बताया था. उससे पहले भी कोई था जिन्होंने दोल कहा था? There was somebody else too. सर फाइजा. फायजा आपने दोल बताया? जी सर. अच्छा शाबाश. फजीला और फायजा दोनों को शाबाश. तो जब आप देखें दिमाग काम कर रहे हैं ना, मतलब अब ये नहीं कि रैंडमली मैं पढ़ रहा हूँ और आप फॉलो कर रहे हैं. यू हैव टू मेक योर माइंड अटेंटिव, make your mind alert to respond to every question, every query which is being asked, right? Because you are the part of this class. Otherwise we would have recorded a video and just would have put it on the YouTube and आप सबको कहते हैं भाई उसको देख लें. आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है. कैसे पता चले कि हमारे साथ इमरान ज़करिया साहब मौजूद हैं, जलील साहब मौजूद हैं, फायजा और फजीला मौजूद हैं. पार्टिसिपेट करें, पता तो चले. दाल पेश दो, धे पेश या धाल पेश ध, धे पेश ध, डाल पेश ड, डाल पेश ड, ढाल पेश ढ, जाल पेश ज, ढाल पेश ढ, जाल पेश ढ, जाल पेश ज, रे पेश र, रे पेश ड़, जे पेश ज, रे पेश ड़, जे पेश ज, सीन पेश स, शीन पेश श, स्वाद पेश स, सीन पेश स, शीन पेश श, स्वाद पेश स, ज्वाद पेश ज, त्वे पेश त, जुए पेश ज. What was with जुए? What was with जुए? Which figure was or which action was being denoted with जुए? Who is there? Who is there? Tell me your name. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Be quick. फजीला सर. जी फजीला. What was with zu? जालिम. Sorry? जालिम सर. Zalim. Zalim. Shabash. Very मेहरबानी. Thank you. Zue. Thank you. Zue pesh zu, an pesh u, ghen pesh gu, ghen pesh gu. What was with ghen? What was with ghen? Ghen. Ghen pesh gu. What was with ghen? There was something with सर ghen. गालीचो. Who is there? Shabash. आयशा खान. Aisha Khan, shabash. Ghen, galicho. Carpet. Galicho. Ghen, galicho, fe. Fe pesh fu, fe pesh fu, kaf pesh ku, kaf pesh ku, kaf pesh ku, kaf pesh ku. कलम किताब. कलम वाली काफ अलग है, किताब वाली काफ अलग है. काफ पेश को, काफ पेश को. खे पेश खु, खे पेश खु, खे पेश खु. What was it K? What was with K being used in the houses? Sorry? फाइजा. खट्टर. जी खट्टा. खट्टा means? फाइजा. जी फायदा. शाबाश. खट्टा means? What does it mean? खट्टा किसको कहते हैं? खट्टे जी माना खबर. खट्टा की खट्टे माना खबर है? बैड. सॉरी क्या कहते हैं उर्दू में? क्या कहते हैं? बैड तो बुरे को कहते हैं, बेड कह सकते हैं, लेकिन बेड बिस्तर को कहते हैं. सर चारपाई. चारपाई. Who told me चारपाई? आयशा खान. आयशा. शाबाश. So K is खट्टा, K is चारपाई, K is चारपाई. अगेन क्लासिकल उर्दू में कुछ इलाकों में इसको खट्टा को खाट भी बोला जाता है. इंडिया के कुछ इलाकों में इंक्लूडिंग हैदराबाद. जब मैं कहता हूँ ना हैदराबाद से, शायद रबिया साहब को मैंने कल कहा था कि आप हैदराबाद से बोल रही हैं या हैदराबाद से बोल रही हैं, क्योंकि वो हैदराबाद दक्कनी लहजे में हैदराबाद को कहते हैं. तो आप जब ट्रेवल करते हैं टू इंडिया और आप हैदराबाद में जाते हैं तो आप को ये लहजा मिलता है. वहाँ का हर शख्स कहता है आप हैदराबाद में खैदर भी, वो किधर को खैदर बोलते हैं.
आप हैदराबाद में खैदर भी जाओगे, यहाँ पर बड़े बुजुर्गों से लेकर पोट्रे पोट्रियां आपके साथ मोहब्बत की बातें करेंगे भाई। तो ये है हैदराबाद। हैदराबाद इज डिनोट्स टू हैदराबाद दक्कन फ्रॉम इंडिया। दिस इज हैदराबाद, हमारा वाला जो है वो हैदराबाद है। गो के दोनों चूड़ियों के लिहाज से मशहूर हैं दोनों शहर। जी जनाब। तो गैन इज गालिचो, गे पेश गो, फे पेश फो, फे पेश फो, काफ पेश को, काफ पेश को, खे पेश खो, गाफ पेश गो, गे पेश गो, घे पेश घो, ङे पेश ङू, ङे पेश गो। Interesting letter and interesting pronunciation of this letter, because since this is an indigenous, one of the indigenous letters which are owned by, which are possessed by only Sindhi language, the Sindhi language only, तो ङे से क्या आता है? ङे से एक लफ्ज आता है, लेकिन I want to listen it from somebody who doesn't speak Sindhi as their mother tongue, who has Sindhi as their second language. Who will tell me what is with ङे? What is with ङे? What is with ङे? What figure denotes ङे? Anybody? Nobody? Nobody? ङे. Sir, sing. Sing. What does it mean, sing? What सर does जो a- सींग होते हैं जो सींग बैल के होते सर हैं, पे। सिर्फ बैल के सर पे होते हैं, बकरे के सर पे नहीं होते? होते हैं। अच्छा। और सींग और गधे का एक मुहावरा मशहूर है उर्दू में, आपको आता है? नहीं सर। किसी को आता है सींग और गधे? करीम भाई, जी जी करीम साहब। गधे के सर पर सिंह, गधे के सर पर सिंह। नहीं, ये मुहावरा ऐसे नहीं है, मुहावरा किसी और तरह से। फजीला ताम बताना चाहिए। You want to add anything? इससे गधे की सर से सींग रहा था। हाँ, who is there जिन्होंने बताया? गधे के सर से सींग गायब सर, जी शहबाज सर, बेग। शहबाज बेग साहब, बिल्कुल सही कहा। ये किस मौके पर कहा जाता है बेग साहब? सर कुछ चीज जैसे गायब हो जाए ना अचानक से, जी, अनएक्सपेक्टेडली, हाँ। गधा के नहीं है ना दो फजीला कहा जाए कि जैसे इस तरह वो काम हो गया, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। सींग गायब हो गए, ठीक है। और खासतौर पर ऐसे मौके पर कहते हैं जब किसी का कोई काम निकल जाए, उसके बाद फिर सिंधी में चौंदान कम निकतो दखन विसरे हो, तो उर्दू में बोलते हैं कि भाई तुम तो काम निकलने के बाद ऐसा गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। बिल्कुल सही है। थैंक यू शहबाज साहब, थैंक यू बेग साहब। अच्छा, ङे सिंग लाम, ला ङे पेश ङो, लाम पेश ल, मीम पेश मो, नून पेश नो, णून पेश णो, वा पेश वो, हे पेश हो, हमजा पेश हो, हमजा पेश उ, ये पेश यू। ठीक है, ये है पेश की जदवल। ये हमने इसको रिव्यू कर लिया, एक रिव्यू इसका हमने कर लिया कि पेश की जदवल में कौन कौन से हरूफ किस किस तरह से प्रोनाउंस होंगे। एंड नाउ वी विल बी कमिंग टू ईच letter to listen to understand its sound, उसका सौत समझने के लिए, तफसील से समझने के लिए एक एक हर्फ को हम अलग अलग से जो है वो क्लासिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मुझे इस क्लास के बाद 8 बजे तक मुझे 2 चीज़ें आप बताएं, और वो 2 चीज़ें आप कागज़ पर लिखेंगे, उसका स्नैपशॉट लेंगे और मुझे भेज देंगे। अल्फ़ाबेट्स में जो हमने फिगर, जो हमने पढ़ी है अल्फ़ाबेट, जो हमने अपने क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 में, पर्टिकुलरली इन क्लास नंबर 3 की स्लाइड्स में, आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, जो हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, उस अल्फ़ाबेट में जो मुख्तलिफ फिगर्स डिनोट की गई हैं मुख्तलिफ हरूफ के साथ, जैसे अलिफ, अख, बे, बदक, बे, बकरी, या मुख्तलिफ जो फिगर्स हैं, उनमें से जितने जानवर हैं वो आपने एक कॉलम में लिखने हैं, जैसे गधा, गांव, ढगो, जैसे जिस तरह से हैं वो आपने एक कॉलम में लिखने हैं। तो यानी जानवर और परिंदे, जितने भी जानदार हैं, जानवर और परिंदे दोनों, वो आपने एक साथ लिखते हैं। सिंग नहीं लिखना उसमें, क्योंकि सिंग इज अ पार्ट ऑफ अ जानवर, नॉट इटसेल्फ अ जानवर। जैसे डाल डेल है, इट इज ऑल्सो, शी इज ऑल्सो अ बर्ड, वो आपने एक कॉलम में लिखने हैं। और जितनी सवारियां हैं वो आपने दूसरे कॉलम में लिखनी है, सवारियां और जानवर। ठीक है, गो थ्रू दी चार्ट, नॉट नाउ, जस्ट आफ्टर क्लास, क्लास जैसी पूरी हो तो आप वो नोट करें और मुझे 8 बजे तक उसके स्नैपशॉट्स जो हैं वो भेज दें। राइट, दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि आपको पता चलेगा कि इसमें जानवर कितने हैं।
यानी जो हमने अल्फाबेट पढ़ी है उसमें जानवर कितने हैं, ताकि उनके नाम कम से कम याद रखने में आपके लिए आसानी तो हो कि खच्चर भी है, गाँव भी है, डगो भी है, घोड़ो भी है। तो ये तमाम जो है वो आप एक कॉलम में नोट करें, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी आप लिखें। सवारियां जितनी भी हैं, जितनी भी सवारियां हैं वो आप एक साथ लिखेंगे, इंक्लूडिंग जहाज, राइट। तो नाउ एवरी लेटर विथ दिस पेश जो सुर, विथ दिस पेश जी हरकत, दिस इज द हरकत ऑफ पेश, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ पेश, के उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। अलिफ पर जब पेश लगता है तो बन जाता है ओ, ओ, दिस इज ओ, इसको ओ नहीं बोले कभी भी, ठीक है, ओ कभी नहीं बोले, पेश को पेश बोले, पेशो नहीं बोले, तो पेशो तो फिर ऑक्यूपेशन हो जाएगा। तो इसको जो है सिर्फ एक टच देकर पेश का फिर वापस आना है, और हर हर्फ ऐसे ही प्रोनाउंस होना है, ये आपने ख्याल रखना है। जबर है तो जबर का आपने सिर्फ टच देना है, वरना वो अलिफ बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे खिदमत, खिदमत कह के वापस आना है, खिदमता कहेंगे तो खिदमता हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो हर्फ खत्म होता है पेश पर तो उसको टच देकर वापस आना, या दरमियान में भी उसको टच देकर सिर्फ पेश का, ताकि कान को पता चले कि इस पर पेश है, इस पर पेश लगा हुआ है। अलिफ पेश उ, नॉट ओ, दिस इज ओ, उ और ओ में फर्क होना चाहिए, ठीक है। उ, दिस इज अलिफ पेश उ, बे पेश बो, बो नॉट बो, दिस इज बो, बे पेश बो, पेश के चार्ट पढ़ रहे हैं दूसरा। दिस इज बे, बे और बे में फर्क, बे, दिस इज बे, दिस इज बे, 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 बे पेश बु, बुक, ओक को कहते हैं बुक। ऐसे दोनों हाथ अगर ऐसे आप दुआ की तरह अगर सामने रखें, या पानी पीने के लिए भी कभी आप हौज से पानी पीते हैं तो इस तरह से पीते हैं पानी, तो उसको कहते हैं, इस ओक, ओक को कहते हैं बुक को। तो उसमें बे पर भी पेश आता है, काफ पर पेश आता है, जो कि हम यकीनन जो है वो मश्क में उसका जिक्र करेंगे। बु, तो दिस इज बु, तो देयर इज अ बिटवीन दिस डिफरेंस बिटवीन how to pronounce be and how to pronounce be, be, be. So this is bu, this is bu, 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 be pesh bu, bhe pesh bhu, भोरड़ो वाला, वो भी जानवरों में आता है। बे पेश भ, भे पेश भ, भुत्तो, सिंधी में कहते हैं नाजुक कोई भी चीज बिल्कुल खस्ता हाल हो, हाथ लगाओ तो वो टूटने लगे, उसको कहते हैं भुत्तो। ये तो भुत्तो थी यार, बिल्कुल खस्ता हो गया है, उसको हाथ लगाओ तो ये टूट रहा है, ये बिखर रहा है, भुत्तो। दीवारें भी होती हैं भुत्ती, यानी खस्ता हाल, कागज भी होते हैं बहुत पुरानी किताबों के, भु, भु, दिस इज भु, बेपेश भु, तेपेश्त, तेपेश्त, भत्त, सिंधी में भत्त कहते हैं चावलों को भी, पुलाव को भी कहते हैं, लेकिन खिचड़ी को भी कहते हैं। मुख्तलिफ सूरतें जो होती हैं, रब, रब इज अनदर थिंग बट फॉर्म ऑफ भत्त। डिशेस के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। भत्त, तो ये तो, ते पेश तो, नॉट तो, दिस इज तो, नॉट तो ये फर्क महसूस करें कि आपने तो नहीं कहना, भत्तो नहीं कहना, तो भत्तो तो भत्ता बन जाएगा, होंडा टैक्स बन जाएगा, तो उसको भत्त ही बोले जो उसका हक है अदा करने का। भत्त, ते पेश तो, थे पेश तो, उठ, उठो, किसी को ऑर्डर करना उठो तो कहते हैं उठ, ठीक है। तो थे पेश तो क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इस किस्म के अल्फाज ऐसे बनेंगे अगर थे पेश तो होगा तो, ठीक है। बूथ, बूथ, ये रिकॉर्डिंग बूथ होता है, उसको बूथ बोला जाता है। इस तरह थ मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यह है थे पेश थो, टे पेश टू, टे पेश टू, टुक जी रिली, देखा होगा आपने, पर्टिकुलर जो टुकड़ियों से रली बनी हुई होती है उसको टुक जी रिली बोलते हैं, टुक। तो दिस इज टू being used in this word too and most of other words too. This is to, te pesh to, right? Te pesh to, boot, boot, te pesh to, उसमें भी te pesh to आता है, te pesh to, te pesh to, ठीक है। te pesh to, उठ, उठ means ऊंट, अलिफ इसके शुरू में आएगा तो उस पर भी पेश होगा, और ठे पर भी पेश होगा, उठ, तो ये ठ। How to pronounce it? Just
Just try to learn how to pronounce it. This is not tho, this is tho. क्योंकि ये मैंने सुना है आपको कहते हुए कि आप उस पेश वाले को वाव की तरह प्रोनाउंस करते हैं. डोंट प्रोनाउंस इट लाइक वाव, जस्ट टच इट. उसमें पेश का टच देकर वापस आ जाए, सिर्फ टच करके वापस आ जाए, उसको खींचे नहीं, ड्रैग ना करें. ड्रैग करेंगे तो वो वाव का इफेक्ट देगा. से पेश से पेश पे पेश पे पेश पुराणो, पुराणो मीन्स पुराना, पुराणो पे पेश पे पेश जीम पेश जुत्ती, जुत्ती कहते हैं चप्पल को, जुत्ती कहते हैं चप्पल को. जीम पेश जीम पेश नॉट जो, दिस जो का बन जाएगा. जो यानी है ना, जो यानी इसका जो, दिस इज जीम पेश जो. ये पेश जो आज, इसमें सिर्फ अलिफ लगा देंगे और उस पर जबर लगा देंगे, वो हो जाएगा ये हो जाएगा जो. हाउ टू प्रोनाउंस इट? जो भज्जू, भागो भज्जू, ठीक है, भागो भज्जू, तो उसमें भी जो आएगा. ठीक है, तो ये पेश जो, झे पेश झे पेश झुरल मीन्स पुराना खस्ता. अगेन झुरल, झुरल म्हणजे झोपड़ी, बिना झलिए झल, झ, ठीक है, झे पेश झ. दिस इज अ सिंगल वर्ड, दिस इज नॉट अ मुरक्कब लफ्ज, दिस इज अ सिंगल वर्ड. झ, ठीक है, झ. न्य पेश न्य, मन्य मानो, तो मेरी बात मानो, तो मुझे गाल मन्य. वन्य जाओ, न वन्य नहीं जाओ. वाव पर अगर शुरू में वाव आ जाए और उस पर जबर आ जाए, न्ये पर पेश आ जाए तो होगा वन्य जाओ, न वन्य नहीं जाओ. क्यों बता रहा हूं ये अल्फाज, क्यों बता रहा हूं? मैं तो हरूफ पढ़ा रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि न्यू कहां पर इस्तेमाल हो सकता है कि हम उसका चार्ट पढ़ रहे हैं, इतनी सरमारी कर रहे हैं इस पर, 2-3 क्लासें हम इस पर यूटिलाइज कर रहे हैं, ज़ाया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे. क्यों? वाई? इसलिए कि इनका इस्तेमाल है, सैकड़ों अल्फाज हैं जो इनसे बनते हैं. ये अगर टेबल जहन में यहाँ बैठ गई तो वो तमाम अल्फाज बनाना, लिखना और उनको प्रोनाउंस करना आसान हो जाएगा. न्यू, न्ये पेश न्यू, वन्यू, वे हुन वन्य मुंजा मिठा, अञा तो दिल न्यू गालियों करनी तुम. देयर इज अ पॉपुलर सॉन्ग इन सिंधी जिसको हम मिसाल के तौर पर भी कहते हैं कि इसकी पंक्चुएशन चेंज की जाए तो इंटरेस्टिंग बन जाता है, मतलब ही उलट बन जाता है. पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस जब हम बयान करते हैं तो असां ॿुधाईंदा आहियूं, उर्दू में मिसाल ॾींदा आहियूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो. अपोजिट मफहूम हो गया. सिंधी में हम मिसाल देते हैं, वेह न वञ मुंहिंजा मिठा, वेह न वञ, बैठो मत जाओ, वेह न वञ, कौमा, कौमा आ गया वे के बाद, वेह न मत बैठो, वञ जाओ, तो उसमें न्यू आता है ना. ठीक है, मन्यु, मन्यु मीन्स मानो, मानो मेरी बात, मुझे गाल मन्यु. वन्य मीन्स जाओ, तो उसमें न्यू इस्तेमाल होता है. न्ये पेश न्यू, चे पेश च, अच आओ, अच अलिफ इसके शुरू में लगेगा, जबर लगेगी, तो उसके बाद अगर चे पेश के साथ आएगा तो अच आओ, अच च, चे पेश च, छे पेश छ, छे पेश छ, छुहण छूना. ठीक है, छे पेश छु, छे पेश छु, ये भी छो नहीं होगा, छो क्यों बन जाएगा? क्यों? वाई इज छो इन सिंधी, वाई, WHY, वाई, क्यों, क्यों इज छो, इसलिए इसको छो नहीं बोलना, छू बोलना है. कच्छ, कच्छ जो ऋण, कच्छ जो इलाका कच्छ है, जिसकी वजह से सिंधी का एक लहजा है कच्छी लहजा, तो वह कच्छ. रन ऑफ कच्छ आपने सुना होगा. थर क्रॉस करें, पारकर क्रॉस करें, नंगर पारकर, तो इंडिया का बॉर्डर स्टार्ट होता है विद द रन ऑफ कच्छ, दैट इज कच्छ. भुज कच्छ, हाँ, जो यू हमने पढ़ा या पढ़ेंगे तो उसमें यू भुज, तो इसी तरह से छु, कच्छ इज इलाका, नाउ इन इंडिया बट previously a part of Indus Valley civilization. छु, कच्छ, पुच्छ, पूछो, कुछ, कुछ गाला है, कुछ मीन्स बोलो, कुछ मीन्स बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ. अगर काफ लग गया शुरू में तो, क्यों मिसालें दे रहा हूं कि आप ये सोच रहे होंगे छु क्यों पढ़ रहे हैं भाई. छु इस्तेमाल होता है सैकड़ों अल्फाज में, इसलिए उसकी प्रोनाउंसिएशन समझ रहे हैं, इसलिए उसकी सुर और उसकी आवाज समझ रहे हैं कि भाई छु कहाँ इस्तेमाल होगा. ये मिसाल के तौर पर जस्ट आपके जहन में ये बता रहा हूँ. वैसे तो हम टेबल पढ़ेंगे, पूरी मश्क करेंगे, लेकिन कुछ अल्फाज जो रैंडमली मेरे जहन में आ रहे हैं बता रहा हूँ कि छु कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है.
ठीक है। छ सैकड़ों जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। ये तो मैं आपको दो दो हरूफ वाले, तीन तीन हरूफ वाले अल्फाज बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे जो कि तवील अल्फाज होंगे, चार चार पांच पांच हरूफ पर मुश्तमिल, उनमें भी छ इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो छह पेश छ, हे पेश हो, हे पेश हो, हे पेश हो। ठीक है, हे हलीम वाली है, हे पेश हो नहीं, हो। खे पेश खो, खे पेश खो, खे पेश खो, नॉट खो बट दिस खो। दाल पेश दो, दाल पेश दो, दुख, दुख जी ने पुजानियां, हर शख्स कहानियां, दुख, दुखण, दुखना, दुखण, दू ही, दुखायण, दुखायण मीन्स दुखाना, दुखण मीन्स दुखना। ठीक है, दुकान, दुकान, तो उसमें दाल पेश दो आता है। दाल पेश द, धाल पेश ध, बुद्ध, सुनो, सुनो कहते हैं बुद्ध, गाल बुद्ध, बात सुनो, गाल बुद्ध। ठीक है, बुद्ध, बुद्ध, बुद्ध धर्म को भी, जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म, उसको कहते हैं बुद्ध। गौतम बुद्ध, तो दिस ध यहां पर भी इस्तेमाल होता है। अध, हाफ, हाफ को कहते हैं अध, उसमें अलिफ लगेगा, उसमें जबर आएगी और धे पर, धाल पर पेश आएगा, तो बन जाएगा ध, बुद्ध, अध। तो ये सारा धे पर पेश लगने से या धाल पर पेश लगने से ये अल्फाज बनते हैं। डाल पेश ड, कुड, एडो कुडन, एडो कुडन, उदकने को कहते हैं कुडन, खुशी से छलांगे मारने को कहते हैं कुडन। तू कुडे चाहते तो, तुम इतना क्यों और कॉन्फिडेंट क्यों, कुड। वैसे कुड खेलने को कहते हैं, रांद कुडन, यानी खेल खेलना, कुड। ठीक है, उड या उडाम, उड यानी उड़ो, प्रवास करो, उसको कहते हैं उड। बुड, डूबो, अमरी अल्फाज है। बुडण मीन्स डूबना, बुड माना, बुड मीन्स डूबो। ठीक है, तो ये कुड, बुड, इस तरह से मुख्तलिफ जो है, डुकार, कहत को बोलते हैं डुकार, वो इसी से शुरू होता है, डाल पेश डू से शुरू होता है। डुकार यानी कहत, ड्राउट जो सहराओं में आता है, जो थर में आता है, दिस इज ड्राउट। थर में भी आता है, थल में भी आता है। थल यानी चोलिस्तान, जो पंजाब का रेगिस्तान है, थर यानी जो सिंध का रेगिस्तान है, तो उसमें आता है डुकार, डुकार। ठीक है, दुख यानी दुख, दुख को दुख भी बोलते हैं सिंधी में, दुख भी बोलते हैं, तो दिस इज डाल पेश डु। ड्राल पेश ड्र, ड्रुक यानी दौड़ो, ड्रुक, डाल पेश ड। ठीक है, ड, चंद्र, चंद्र, खंड, खंड, खंड इज कॉन्टिनेंट, खंड इज शुगर, खंड चीनी है, और खंड जो है कॉन्टिनेंट है, बर्रा, और छोटा हो तो बरे सगीर, बड़ा हो तो बरे आजम। ठीक है, ड, चंद्र, चांद, खंड, मैंने आपको बताया चीनी। तो इसी तरह से जो डाल है, डाल पेश ड, नॉट दो, डाल पेश ड। ढाल पेश ढ, कड, निकालो, कड, जितना पैसा थे कड, वो लूटने वाले से कहते हैं जितना पैसा थे कड, कड, काफ शुरू में लगेगा, काफ पर जबर, ढाल पर पेश, कड मीन्स निकालो। ठीक है, वड्ढ यानी जख्म, वडो वड्ढ लगवा है, बहुत बड़ा जख्म लगा है, बहुत बड़ा घाव लगा है, वड्ढ। तो इसी तरह से मुख्तलिफ इससे बनते हैं, ढ, ढ। ठीक है, तो ये है ढ, ढाल पेश ढ। जाल पेश ज, महाज, उसने महाज खोल रखा है, महाज, जाल पेश ज। ये रैंडमली अल्फाज मेरे जहन में आ रहे हैं, मेरे सामने लिखे नहीं हुए, वो तो हम अल्फाज लिखकर जो मश्क करेंगे वो तो करेंगे। Sorry, there was an interruption from my side. So we were discussing about this पेशल chart, and this was Zal, as I told you, Mahaz, Zal पेश Mahaz, और उसके बाद फिर आगे इससे पहले हमने ढाल पेश ढ पढ़ा, ढे पेश ढ यानी कढ़, वढ़, जैसे मैंने आपको बताया। जाल पेश ज, महाज, महाज, जाल पेश ज, नॉट जो, दिस इज ज, महाज। ठीक है, नफाज, किसी चीज का नफाज, किसी चीज को नाफिज करना,
नफाज, ये अल्फाज वो हैं अरबी और फारसी के जो सिंधी में भी एज इट इज इस्तेमाल होते हैं। किसी कानून का, आइन का नफाज, तो सिंधी में, उर्दू में जो है वो नफाज जाल जो है वो साकिन है, सिंधी में जरूर कहेंगे नफाज जाल पर पेश। तो ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल होता है जाल पेश ज़। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप यू मस्ट नॉट वॉन्डर कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनका इस्तेमाल इसलिए इस्तेमाल होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका सैकड़ों अल्फाज बनाने के लिए इन टेबल्स में जितने भी अल्फाज हैं जिनके हम सुर सीख रहे हैं, जिनकी हरकत सीख रहे हैं, जिनके अरावे सीख रहे हैं, उनका इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम ये सीख रहे हैं तमाम। रे पेश रो बर जलो, बरी बरी तो क्या जालो, लुची लुची तो लिखा जमालो, खिली पुछी तो तकी हला तो जी हले तो जान जानी, रुठो रुनो घणो थम, रुनो रुनो मीन्स रोया बहुत हूं, रुनो घणो थम, लुचो घणो थम, सुठो घणो थम जान, ऐं ज़मीन मुंहिंजो बयान, समुंड मुंहिंजो गवाह थींदो, ज़मीन ॾींदी बयान। उस्ताद बुखारी, ग्रेट पोइट ऑफ दिस लैंड, उनकी ये सतूर जो है वो याद आ गई। तो दिस इज रे पेश रो बर यानी जलो, ठीक है। घर मीन्स घर, ऐसे बहुत सारे इसके हम काफी है, बहुत सारे अल्फाज हैं, ठीक है। हर मीन्स हल, हर हलायन, हल चलाना, हर, ठीक है। इस तरह बहुत सारे अल्फाज, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिससे वो शुरू होता है रु, जैसे मैंने बताया रुनो, रुठल, रुठाई रहन पर होजन हयाती, रु, तो ये है रे पेश रो, नॉट रो, दिस रो, रु रु, रे पेश रो। उसके बाद रे पेश ड, रे पेश ड, रे पेश ड, मुड़, बाज आ जाओ, मुड़, मुड़, मुड़ मीन्स बाज आ जाओ। एक ही लफ्ज आप कहोगे तो तीन अल्फाज का, उर्दू के तीन अल्फाज का ये नबुल बदल है, मुड़ यानी बाज आ जाओ, मुड़, ठीक है। बहुत सारे और भी इससे अल्फाज आते हैं, मुड़। तो जैसे उर्दू में मुड़ने को मुड़ कहा जाता है, सिंधी में यही होता है कि बाज आ जाने को, यानी जैसे तुम जा रहे हो वहां से मुड़ जाओ, जिस रास्ते पे जा रहे हो वहां से मुड़ जाओ, कमोबेश उसका सेंस वही है, मुड़ो, रे पेश ड़, जे पेश ज, जे पेश ज, जे पेश ज, नॉट जो, जे पेश ज, ठीक है। सीन पेश स, सुठो यानी अच्छा, बेहतर। सु, सु, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अल्फाज में सु या स अच्छे के मायनों में इस्तेमाल होता है। शुरू में अगर लग जाए तो सु भाव, मैंने आपको बताया था, भाव यानी याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था रवैया, सलूक। सु भाव यानी अच्छा रवैया, कु भाव यानी खराब रवैया। सुभाव अच्छा रवैया, स्वभाव जिसको आपने सुना होगा हिंदी में बोलते हैं, तो दोनों की माँ तो एक ही है, संस्कृत, वहां से वो निकली है। तो सुभाव, स्वभाव जिसको बोलते हैं, यानी अच्छा बर्ताव। कुभाव यानी खराब बर्ताव। तो सु अच्छे के मायनों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर सु एज ए हर फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो सु जो है, सुपरी अच्छे महबूब, कुपरी वो महबूब जो पोशाक को तंग करे, उनको तकलीफ दे, उसको कुपरी। सुपत भरा कुपरी, कुपरी कुपत की न करे, कुपत, सुपत यानी अच्छा रेपुटेशन, कुपत बुरा रेपुटेशन। पत मीन्स क्रेडिबिलिटी, पत मीन्स खू जिसको कहते हैं नेक खू और बद खू, उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो सिंधी में है पत, यानी पत वायकी थी भाई, यानी हुनजो जेको असल रवैयो हो वो ज़ाहिर, हुनजो जेको असल किरदार हो ज़ाहिर। सुपत अच्छा किरदार, कुपत खराब किरदार, ठीक है। किरदार मीन्स रोल, किरदार मीन्स रोल। सु, तो ये सु, सीन पेश सु, शीन पेश श, पेश बताते खुद, पेश जो है उस पर शीन है, पेश श, शीन पेश श, नॉट शो, दिस इज श, पेश, ठीक है। श, स्वा पेश स्वा, सु, स्वा पेश सु, स्वा पेश सु, सु, ठीक है। स्वा पेश सु, ज़्वा पेश ज़, ज़्वा पेश ज़, तफवीज़ ही तव्हां ते ज़िम्मेवारियूं तव्हां खे तफवीज़ कयूं वयूं। ज़, ज़्वाद, ज़्वाद पर पेश ज़। तुए पेश तो, एहतियात, एहतियात उर्दू में बोलते हैं, लेकिन सिंधी में जब बोलेंगे तो उस पर पेश आएगा। एहतियात तो, ते पेश तो, तुए पेश तो, सॉरी, तुए पेश तो, जुए पेश ज़, जुए पेश ज़, जुए पेश ज़, ज़ुल्म, ज़ुल्म, जुए पर भी पेश, लाम पर भी पेश, मीम पर भी पेश, ज़ुल्म। आज कल जो हम मश्क करेंगे देखेंगे तो कि उसमें जो अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ उसके अलावा कितने अल्फाज आप मुझे बता रहे हैं, और वो हाईलाइट करके अपने चार्ट में लिखता है, ताकि पता चले कि आपने अपने जहन को चलाकर कितने अल्फाज जो हैं वो रिकॉल किए
इसमें ये रिकॉलिंग की बात होती है ना, जो लिसन टू मी, तो वो जो 20 अल्फाज हम मश्क में करते हैं वो सिर्फ वही थोड़ी होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज होते हैं। और उन अल्फाज के अलावा कौन से आपके जहन में आते हैं, ये भी एक इम्तिहान है, और ये भी इसमें भी आप अपने आप को आजमा सकते हैं। तो जुए पेश जो, जैसे मैंने आपको बताया, जुल्म, ज़ात पर पेश, लाम पर पेश, मीम पर पेश, जुल्म, ठीक है, जुल्म। तो ये ज़्वा, ज़्वा पेश जु, जुए पेश जु, उसके आगे, उसके बाद एन पेश उ, उकाब, एन पेश उ, एन पेश उ, ठीक है, एन पेश उ, नॉट ओ, दिस एन पेश उ। गैन पेश गो, गैन पेश गो, गुफरान, ठीक है, गुफरान, गैन पेश गो, गो, गैन पेश गो, फे पेश फो, फे पेश फो, फुरकान, फे पेश फो, मुआफ, मुखे मुआफ कर, मुखे मुआफ कर, फे पेश फो, फे पेश फो, फे पेश फो, फे पेश फो, नॉट फो, दिस इज फे, फे पेश फो। काफ पेश को, काफ पेश को, कुरान, काफ पेश को, कुरान ऐसे ही लिखा जाता है, इसी हर्फ से, इसी आवाज से शुरू होता है, कुरान, काफ पेश को, ठीक है, उमीक, उमीक को, ठीक है। तो ये है काफ, काफ पेश को, काफ पेश को, मशकूक, काफ पेश को, मशकूक, काफ को तो, काफ पेश को तेवा तो, कुतो, ठीक है, काफ पेश को, ठीक है, शरीक, शरीक के आखिर में यही आता है, शरीक, माँ शरीक थी दुस, पकड़ भी तो वो माँ शरीक थी दुस, पर ये दरअसल शरीक, केतरा शरीक आया, ये तो जो शरीक हयात था, ये तुंहिंजी शरीक हयात था, केतिरा माण्हू महफ़िल में शरीक थिया, जेतिरा भी शरीक आहिनि उन्हनि खे सॾु कयो। त को, काफ पेश को, ये है काफ पेश को, ये है काफ पेश को, खे पेश खो, खे पेश खो, खुटण यानी कम हो जाना, खुटण, खोट जिससे निकला है, हमने वर्ड ऑफ द डे पढ़ा था, खुटण, उसका जो वर्ब है वो है खुटण, खु, मिखु, लिखो, लिखो, लाम शुरू में लग जाएगा, लाम पर जेर, खे पर पेश, लिखो, ठीक है। गाफ पेश गो, गुडी, गाफ पेश गो, गुडो, गाफ पेश गो, डाल बाडो, डाल बा जबर डो, गुडो, डाल ये जेर डी, गुडी, ठीक है। गुनाह, गुनाह, तो उसमें भी गाफ आएगा, इसी से शुरू होता है। तो गाफ पेश बहुत सारे अल्फाज में इस्तेमाल होता है, ये आवाज इसी सुर के साथ, गाफ पेश गु, गाफ पेश गु, गाफ पेश गु, ठीक है। माग, सुहाग, माग कहते हैं किसी भी डेस्टिनेशन, उसको कहते हैं माग, माग मका, ठीक है। सुहाग, सुहाग यानी शौहर को कहते हैं सुहाग, और सुहाग हमारे यहाँ कौम भी है, बहुत सारे लोग उस कौम से ताल्लुक रखते हैं, जैसे बट है, जैसे सिद्दीकी है, जैसे फारूकी है, वैसे सुहाग, सुहाग। और सुहाग बख्त को भी कहते हैं, यानी किस्मत को भी कहते हैं, सुल्तानी सुहाग निंडू का देना मिले, सुतावती जाग, जाग भी जागो, जाग, ठीक है, निंडन के जेतरी, तो जो साणे भाइयों सो मांझान दिए, जो माग, माग डेस्टिनेशन, अगेन डेस्टिनेशन और पड़ाव, सुल्तानी सुहाग, सुल्तानी सुहाग यानी सुल्तानों जैसा जो उन जैसी जो किस्मत है, निंडू का देना मिले, वो सोते से नहीं मिलती, उसके लिए जद्दोजहद और तगोदौ करनी पड़ती है। गो, तो ये मुहाग, सुहाग, माग, ये सारे ये पेश पर खत्म होते हैं। घे पेश घु, घे पेश घु, माघ, सिंधी कैलेंडर का महीना है माघ, घे पेश घु, माघ, ठीक है। घुर, घुर, ये वो लफ्ज के जो दोनों पर जो है वो पेश है, घुर यानी मांगो, घुर पहले खुदा की, अपने खुदा से मांगो, घुर, ठीक है। माघ मैंने महीना आपको बताएंगे, ये पेश ngु, ये पेश ngु, ये पेश ngु, लाम पेश लो, लाम पेश लो, लुगात, लुगात लतीफी, लाम पेश लो, लो, मीम पेश मो, मोह, फेस, मोह, मीम पेश मो, ठीक है। कलम, कलम, दिस इज कलम, मो, मीम पर पेश, कलम, तो ये मीम पेश इस्तेमाल। नून पेश न, नून पेश न, नून पेश न, मान, शान, वही मायने हैं जो उर्दू में, मान, शान, जहान,
जोड़ों जोड़ जहान जी, जहान। महान मीन्स बड़े एहतराम वाला, महामान, महान मीन्स महामान, बड़े मान वाला। नून पेशणु, णून पेशणु। वर्णणु, खणणु, खणणु मीन्स उठाना, वर्णणु मीन्स पसंद आना, णु, णून पेशणु। वाव पेश वो, वाव पेश वो, वाव पेश वो, ठीक है। हे पेश हो, हुरण, दिल में हुरण, कोई चीज दिल में गर्दिश करे, हुरण, कोई चीज याद आए, हुरण। हे पेश हो, वाह हो कल हमने पढ़ा था, कैनाल, कैनाल इज वाह हो, यही हे पेश हो पर खत्म हो रहा था, ठीक है। तो हे पेश हो, नॉट हो, दिस इज हे पेश हो। हमजा पेश ओ, बहुत सारे हजारों अल्फाज से शुरू होते होंगे, हजारों अल्फाज ऐसे इससे शुरू होते होंगे हमजा पेश ओ से, ठीक है। तो ये दरमियान में भी आता है अल्फाज के शुरू में भी आता है, अल्फाज के आखिर में भी आता है। तो हमजा पेश ओ, हमजा पेश ओ, ये पेश यू, ये पेश यू, ये पेश यू, नॉट यो, ये पेश यू, ठीक है। तो ये था आखिरी हर्फ पेश की जदवल का, ये पेश यू। और बहुत सारे अल्फाज जो रैंडमली जहन में आए वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। So any questions about these slides? If you have any questions, you can ask. Otherwise, we can wind up the class. Any questions? Any questions? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन स्लाइड से हटकर है। नाम आपने जो बताइए, assignment 8 बजे तक जमा नाम बताइए। शादी सिराज। जी शादी साहबा। सर आपने जो असाइनमेंट का कहा है कि 8 बजे तक आपको जमा करवाना है, वो जी। प्लीज एक बार आप फिर से मुझे डिफाइन कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि जो अल्फाबेट्स हैं उसमें फिगर्स हैं ना हर किसी के साथ, अलिफ, अख, बेबदक, ये है ना। तो आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में आपने वो तमाम अल्फाज लिखने हैं जो जानवरों के नाम हैं, डिनोट करते हैं जानवरों के नाम। जैसे गाफ गधा है, गाफ से गधा गधा है, ठीक है, गाफ गधा है। घे घोड़ा है, डाल डेल है। परिंदों और जानवरों के नाम जितने भी अल्फाबेट्स में हैं वो आपने लिखने हैं एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में लिखने जितनी भी सवारियां हैं इसमें जो अल्फाबेट्स में हमारे चार्ट में है। रेफर टू लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में डिटेल में ये जो है वो अल्फाबेट्स हैं, उनकी फिगर्स छपी हुई हैं। तो वो जो हमारे अल्फाबेट में, अल्फाबेट के चार्ट में हमारे में जो हमने पढ़े हैं उसमें जितने भी परिंदे और जानवर हैं वो एक कॉलम में आपने लिखने हैं, और दूसरे कॉलम में आपने सवारियां लिखनी है, चाहे 1 हो, 2 हो या 10 हो, वो लिखनी है आपने। ठीक है। और अपना नाम और शहर का नाम लिखना है, ये सब ने लिखना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो सर, करीम बख्श बात कर रहा हूँ सर। जी करीम बख्श साहब। सर ये मैं कह रहा हूँ जो लेक्चर हैं वो थोड़ा अपलोड कर दें, क्योंकि बाज दफा नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम पूरे लेक्चर सुन नहीं सकते हैं। तो नहीं हो तो रहे ये क्या? बकाया जो लेक्चर नहीं, लेक्चर से 9 तक हुए, उसके बाद लेक्चर अपलोड नहीं हुए सर। कौन से के बाद, कौन से लेक्चर के बाद? 9 क्लास है, 9 क्लास है अपलोड है सर। अच्छा, लेट मी चेक इट कि 9 के बाद नहीं हुए। 9 यानी 10, 11, हाँ सर, वो कुछ 12 और 13 नहीं हुए। मसरूफ रहते हैं जी, तो बाद में सुन नहीं सकते हैं, बाद में डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच में, तो इस वजह से वो कुछ चीजें रह जाती हैं। लेट मी चेक विद माय आईटी टीम कि क्यों नहीं हुए, कोई वजह होगी तो वो हो जाएंगे, अपलोड हो थैंक यू जाएंगे। सर। वेलकम। थैंक यू। Welcome. Any other questions or any input or any suggestions or any additions you want to add into anything? Anything? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इमरान साहब। सर ये जो अल्फाबेट्स जो हमारे दूसरे लेक्चर में वो जो फिगर्स दिए हुए हैं हर जी, इसके साथ, अलिफ बे के साथ, जिस तरह बे बकरी, और सर ये है हाथी से पहले वाव से ये लड़के ने कुछ उठाई हुई है लकीर, इसका क्या बनता है? वो इसमें वाढो confusion है। वाढो मीन्स कारपेंटर। वाढो है। वाढो। वाढो मीन्स कारपेंटर। कारपेंटर। और ये से क्या बनता है सर? ये आखिरी वाला वो जो ये से बीन बाजा बना हुआ है, कौन सा बीन बाजा बना हुआ है? ये वाली शक्ल के साथ सर। ये वाली शक्ल के साथ कौन सा बीन बाजा बना हुआ है? सर ये यक्को सर है, ये कहीं पर ये यक्को, वो तो यक्को है ना, ये यक्को है। बीन बाजा तो कोई नहीं बना हुआ उसमें। यकतारो सर, यकतारो। ये यकतारो है, ये यकतारो है। हाँ, बीन बाजा नहीं है वो, ये यकतारो है। जी हाँ, यकतारो वो इकतार है, साज है। ये यकतारो।
साज वही ना, वही जो साज जो बजाते हैं सर, जिसके साथ वो यकतारो। एक तारा। बीन तो वो बजाई जाती है, वो अपना वो तो ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक तारा यानी एक तार पर मुश्तमिल साज, वो एक तारा है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? और ये और रून, अरे वो जो दरख्त बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? दोबारा बोलिए, मैं नहीं सुन सका। ये रून से वण, वण मीन्स दरख्त। जो ऋण इज वण मीन्स दरख्त, वंड पेड़। वण वंड वण 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 वणदा प्याई, वो सराकी बाब नहीं बोलते, मैं कहूँ तो वणदा प्याई, तो वो वणदा प्याई वाला वण है ये, ऋण है ये। वण, अच्छा, वण मीन्स दरख्त, पेड़। पेड़ को कहते हैं, दरख्त को, ट्री को बोलते हैं। थैंक यू सर, मेहरबानी, वेलकम, शुक्रिया। एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? तो 8 बजे तक जो है आपकी असाइनमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक बार फिर रिपीट करते चलूं कि एक कॉलम में आपने लिखने हैं वो तमाम जानवर जो, ऐसे नहीं रैंडमली नहीं, जो अल्फाबेट्स में है, जो अल्फाबेट्स हमने पढ़ी हैं उनमें जो जानवर हैं वो एक कॉलम में आपने लिखने हैं, तमाम सिंधी में लिखना है। सिंधी में लिखना है, घोड़ो है तो घोड़ो सिंधी में लिखना है, गधा है तो गधा सिंधी में लिखना है। ये आपको याद ना दिलाना पड़े कि वी आर लर्निंग सिंधी कोर्स, दिस इज अ सिंधी लर्निंग कोर्स, this is not English learning course or any other language, right? You have to write the names in Sindhi of various animals in one column, and of various जो sources हैं, sources of transportation, जो सवारियां हैं वो अपने दूसरी कॉलम में लिखनी, चाहे कितने भी कम हो कितने भी ज्यादा। Write your name and your city and send it to the admin by 8 p.m. tonight. Thank you so much. वरी महिरबानी है जो को क्लास नंबर 14 हुयो ऐं क्लास नंबर 14 अॼु असां तव्हां सां हिन हफ़्ते जो ही क्लास नंबर 3 हुयो, because there was no class on Monday, लेकिन I told you that this Saturday there will be a class instead of that Monday. तो वो मंडे वाली क्लास जो एक नहीं हो सकी थी, तो वो हम उसको कवर करने के लिए, ताकि 5 लेक्चर्स हमारे 5 मॉड्यूल्स इस हफ्ते के पूरे हों, तो वो वी विल प्लेस इट एंड शेड्यूल इट ऑन सैटरडे, राइट? अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इस लर्निंग के सफ़र में आप आगे से आगे बढ़ने की जो आपका जो टेम्पो है, आपकी जो स्पीड है, उसको आप उसमें अपना इंटरेस्ट शामिल कर लेंगे। जब इंटरेस्ट शामिल करेंगे तो कोई भी चीज़ जो आप दिल से करते हैं तो फिर उसके नतायज बड़े अच्छे आते हैं, वो जहन नशीन जल्दी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इज देयर एनी असाइनमेंट? अच्छा, ये अचानक से रैंडमली ये सवाल आता है। देयर इज एन असाइनमेंट व्हिच आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड एंड आई विल आस्क माय टीम टू अनाउंस इट इन द ग्रुप आल्सो, सो दैट यू कैन कंप्लीट इट। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं क्लास नंबर 15 में 5 PM, बशर्ते दुरुस्त की हालात और बशर्ते हयात, सबसे पहले बशर्ते हयात और दुरुस्त की हालात, कल 5 PM एज पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दिलों को जुदाई करें ना है, सदाएं गॾु, जेॾां पे तेरा खैर, अल्लाह ने कहबा।